آپ تمام جماعت کو ہمارے چاروں چینلز کی جانب سے یا علی مدد، مولا علی مدد۔ آج ہم اسماعیلی تاریخ کے ایک ایسے حصے کو کھولنے جا رہے ہیں جو ہماری تاریخ میں بہت ہی اہم ہے۔ جی بالکل، یہ صرف ایک سلطنت کی کہانی نہیں ہے، یہ ایک مشن کی کہانی ہے، ایک دعوت کی۔ ایک ایسی دعوت جو خاموشی سے شروع ہوئی لیکن دیکھتے ہی دیکھتے میڈیٹرینین سے ہندوستان تک پھیل گئی۔ صحیح۔ سوچئے، جب دنیا عباسی نام سے چل رہی تھی تب ایک نئی قوت ابھر رہی تھی، خطبہ بدلے، سکے بدلے اور تاریخ کا رخ بدل گیا۔ سب کچھ بدل گیا۔ دنیا نے دیکھا فاطمی خلافت کا عروج اور پھر اس کا امتحان۔ یہ ہے دعوت سے دولت تک کا سفر۔ بہت خوب۔ یہ ہے فاطمی تاریخ۔ آج ہم فاطمی تاریخ کے پارٹ 1 پہ بات کریں گے اور اگلے حصے میں پارٹ 2 پر۔ اور ہاں، ویڈیو کو شیئر اور ہمارے چاروں چینلز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو آئیے اس کہانی کی جڑوں تک چلتے ہیں۔ جب ہم دعوت کی بات کرتے ہیں تو عام طور پر ذہن میں بس تبلیغ کا تصور آتا ہے، لیکن فاطمی تاریخ کے تناظر میں دعوت کا مطلب اس سے کہیں زیادہ منظم لگتا ہے۔ یہ کیا تھا اصل میں؟ یہ ایک بہترین سوال ہے کیونکہ یہیں سے پوری کہانی کا آغاز ہوتا ہے۔ دیکھیں، فاطمی تاریخ میں دعوت صرف ایک مذہبی پیغام نہیں تھا، یہ ایک انتہائی منظم، خفیہ، سیاسی اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ فکری تحریک تھی۔ اچھا۔ اس کا ایک باقاعدہ ڈھانچہ تھا جس کی سربراہی امام کرتے تھے، اور ان کے نیچے داعیوں کا ایک پورا نیٹ ورک تھا جو نہ صرف روحانی تعلیم دیتے تھے بلکہ سیاسی حمایت بھی حاصل کرتے تھے۔ یعنی وہ امام کی حکومت کے لیے زمین تیار کر رہے تھے؟ بالکل۔ اسے سمجھنے کے لیے آپ اسے ایک ریاست کے اندر ریاست کہہ سکتے ہیں، جو ایک بڑی سلطنت کے اندر خاموشی سے اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہی تھی۔ واہ، ایک مکمل متوازی نظام۔ اچھا، آپ نے عباسیوں کا ذکر کیا۔ اس وقت کا سیاسی منظرنامہ کیسا تھا؟ عباسی خلافت تو اس وقت کی سپر پاور سمجھی جاتی تھی۔ ظاہری طور پر تو وہ بہت طاقتور تھے، بغداد ان کا شاندار مرکز تھا اور وہ اسلامی دنیا کے حاکم تھے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ 9ویں اور 10ویں صدی تک یہ سلطنت اندر سے کھوکھلی ہو رہی تھی۔ اچھا، کس طرح سے؟ مرکز یعنی بغداد کی گرفت صوبوں پر کمزور پڑ رہی تھی۔ مصر، شمالی افریقہ، فارس، یہاں مقامی گورنر تقریباً خود مختار ہو چکے تھے۔ تو وہ بغداد کو جوابدہ نہیں تھے؟ وہ ٹیکس تو بھیجتے تھے لیکن اپنے فیصلے خود کرتے تھے۔ معاشرے میں فرقہ وارانہ کشیدگی اور معاشی عدم مساوات بھی بڑھ رہی تھی۔ فاطمی دعوت نے اسی سیاسی انتشار اور عوامی بے چینی کو آپ کہیں اپنی کامیابی کی بنیاد بنایا۔ انہوں نے ایک ایسے خلا کو دیکھا جسے کوئی اور پر نہیں کر رہا تھا۔ بالکل۔ اور اس خلا کو پر کرنے کی شروعات ایک بہت ہی غیر متوقع جگہ سے ہوئی، یمن سے۔ یہ بات مجھے بہت دلچسپ لگتی ہے۔ آج کے دور میں تو طاقت کے مراکز بڑے شہر ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے یمن کے پہاڑی علاقوں کو چنا۔ یہ ایک عجیب اسٹریٹجک فیصلہ نہیں لگتا؟ پہلی نظر میں عجیب لگتا ہے، لیکن یہ ایک کمال کی حکمت عملی تھی۔ اکثر تحریکیں بڑے شہروں سے شروع ہوتی ہیں اور انہیں آسانی سے کچل دیا جاتا ہے۔ فاطمیوں نے اس کے بالکل برعکس کیا۔ انہوں نے مرکز سے دور ایک جگہ چنی۔ جی، بغداد سے دور ایک ناقابل رسائی علاقے کو اپنی لیبارٹری بنایا۔ یمن کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کر کیا گیا تھا۔ اس کے پہاڑی علاقے، قبائلی نظام جو مرکزی حکومت کو آسانی سے قبول نہیں کرتا، اور بغداد سے دوری، یہ سب عوامل اس تحریک کے لیے بہترین تھے۔ تو یہ صرف ایک محفوظ ٹھکانہ نہیں تھا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ ایک انکیوبیٹر تھا۔ یہاں وہ اپنے نظریے، اپنی قیادت اور اپنی انتظامی صلاحیتوں کو دنیا کی نظروں سے دور رہ کر آزما سکتے تھے اور بہتر بنا سکتے تھے۔ اور یہیں پر ابن حوشب کا کردار سامنے آتا ہے نا؟ بالکل۔ ابن حوشب، جنہیں منصور الیمن کا لقب دیا گیا، نے نہ صرف تبلیغ کی بلکہ مقامی قبائل سے اتحاد کیا، قلعے بنائے، ٹیکس جمع کرنے کا نظام قائم کیا اور ایک چھوٹی سی ریاست کی بنیاد رکھی۔ اور وہ جھنڈے والی بات بھی بہت مشہور ہے۔ جی، جب انہوں نے اپنے ہیڈ کوارٹر پر ایک سبز جھنڈا لہرایا جس پر قرآنی آیت لکھی تھی، تو یہ صرف ایک جھنڈا نہیں تھا، یہ ایک متبادل اتھارٹی کے قیام کا اعلان تھا۔ واہ، یعنی جب فاطمی منظر عام پر آئے تو وہ کوئی ناتجربہ کار گروہ نہیں تھے، بلکہ ان کے پاس ایک آزمودہ اور تیار شدہ حکومت کا پروٹوٹائپ تھا جو یمن میں کامیاب ہو چکا تھا۔ بالکل یہی بات ہے۔
यमन एक तरह की ट्रेनिंग एकेडमी बन गया जहां से तरबियत याफ्ता दाइयों को पूरी इस्लामी दुनिया में भेजा जाता था। मिस्र, फारिस, वस्ती एशिया और यहाँ तक कि सिंध तक। एक गैर मरकजी लेकिन आपस में जुड़ा हुआ नेटवर्क। जी, और इसी नेटवर्क ने आने वाली फातिमी सल्तनत की बुनियाद रखी। ये हैरत अंगेज है, लेकिन जाहिर है यमन खुद मंजिल नहीं था, ये एक लॉन्च पैड था। तो अगला कदम क्या था? ये तहरीक पहाड़ों से निकलकर खुले मैदान में कैसे आई? अगला मैदान था शुमाली अफ्रीका, जिसे उस वक्त मगरब या अफ्रीकिया कहा जाता था। यहाँ के हालात भी यमन की तरह साजगार थे, लेकिन एक बहुत बड़े पैमाने पर। वहाँ क्या सूरत हाल थी? वहाँ के मकामी बर्बर कबाइल, खास तौर पर कतामा बर्बर, अब्बासियों की मुकर्रर करदा अगलबी हुकूमत से सख्त नाला थे। भारी टैक्स, सियासी जबर, इन सब ने उनमें बगावत के जज्बात पैदा कर दिए थे। तो वो एक मुतबादिल की तलाश में थे। जी, वो एक ऐसी क़ियादत की तलाश में थे जो इंसाफ और मसावात का वादा करे। और दाई अबू अब्दुल्ला शी ने इसी बेचैनी को इस्तेमाल किया और कतामा कबीले को फातमी इमाम की हिमायत के लिए मुनज़्ज़म किया। और फिर 909 ईस्वी में वो तारीखी लम्हा आया जब दावत का खुफिया दौर ख़त्म हुआ और रियासत का खुलेआम ऐलान किया गया। इमाम अब्दुल्ला अल मेहदी बिल्ला ने अपनी सियासी अथॉरिटी का ऐलान किया और पहले फातमी खलीफा के तौर पर सामने आए। ये इस्लामी तारीख में एक जल्जले के बराबर होगा, है ना? बिलाशुबा। इस वक्त तक सुन्नी दुनिया में अब्बासी खलीफा ही वाहिद कानूनी हाकिम समझा जाता था। अल मेहदी का खुद को खलीफा करार देना अब्बासियों की अथॉरिटी को बराह रास्त चैलेंज करना था। और रिकादा शहर में उनका दाखिला एक नए दौर का आगाज था। बिल्कुल। बैत ली गई, मसाजिद में जुमा के खुतबे से अब्बासी खलीफा का नाम हटाकर इमाम अल मेहदी का नाम शामिल किया गया और सबसे अहम, उनके नाम के सोने और चांदी के सिक्के ढाले गए। अच्छा, तो ये तीन चीजें खुद मुख्तारी की निशानी थी। जी, कुरून वस्ता की इस्लामी दुनिया में यही सबसे बड़ी निशानियां थीं, खुतबा, सिक्का और इलाकाई कंट्रोल। अब इस्लामी दुनिया में 2 खलीफा थे। तो एक रियासत कायम हो गई, लेकिन रियासत कायम करना एक बात है और उसे चलाना बिल्कुल दूसरी। अल मेहदी को किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? उन्हें फौरी तौर पर कई चैलेंजेस का सामना था। सबसे पहले तो इंतजामी ढांचा बनाना था। उन्होंने टैक्स का निज़ाम मुनज़्ज़म किया, एक वफादार फौज खड़ी की और एक नए दारुल हुकूमत मेहदिया की बुनियाद रखी। ये एक किला था जो समुंदर के किनारे बनाया गया था ताकि अंदरूनी और बैरूनी खतरात से महफूज रह सके। ये इस बात की अलामत थी कि फातिमी रियासत अभी नहीं थी और उसे अपने दिफा की फिक्र थी। और उनके जानशीनों ने इस रियासत को मुस्तहकम किया। जी, अल-कायम और ख़ास तौर पर अल-मंसूर ने। लेकिन इसी इस्तेहकाम के दौर में एक बहुत बड़ा बहरान भी आया। आप अबू यजीद की बगावत की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, ये फातिमी रियासत के वजूद का बहरान था। अबू यजीद, जिसे साहिबुल हिमार भी कहा जाता था, एक ख्वारिजी रहनुमा था। तो ये सिर्फ एक फौजी बगावत नहीं थी? नहीं, ये एक नजरियाती चैलेंज भी था। उसने शुमाली अफ्रीका के उन बर्बर कबाइल को मुत्तहिद कर लिया जो फातिमी हुकूमत से नाराज थे, और वो दारुल हुकूमत मेहदिया के दरवाजों तक पहुंच गया। मतलब एक वक्त पर ऐसा लगा कि फातिमी रियासत खत्म हो जाएगी। जी, ऐसा ही लगा था, लेकिन इमाम मंसूर ने कमाल बहादुरी और हिकमत अमली से इस बगावत को शिकस्त दी और इस फतेह ने फातिमी रियासत को तबाही से बचाकर पहले से ज्यादा मजबूत बना दिया। सही। और उसके बाद इन्होंने बहरी ताकत पर भी बहुत तवज्जो दी। हाँ, और ये उनकी दूर अंदेशी थी। शुमाली अफ्रीका के साहिली शहर ट्यूनिस, त्राबलिस, मेहदिया कुदरती बंदरगाहें थीं। उन्होंने एक ताकतवर बहरिया तैयार की जिसने उन्हें बहरे रूम यानी मेडिटेरेनियन की एक बड़ी ताकत बना दिया। तो वो तिजारत को भी कंट्रोल कर सकते थे? जी, अब वो ना सिर्फ सिसिली पर असरअंदाज हो सकते थे, बल्कि यूरोप और मशरिक के दरमियान होने वाली तिजारत को भी कंट्रोल कर सकते थे। वो अब सिर्फ एक जमीनी ताकत नहीं थे, बल्कि एक बहरी ताकत भी थे। तो अब तस्वीर ये बनती है कि फातिमियों के पास शुमाली अफ्रीका है, जी, एक मजबूत फौज है और मेडिटेरेनियन में एक ताकतवर बहरिया है। लेकिन इनका हतमी मकसद सिर्फ शुमाली अफ्रीका पर हुकूमत करना नहीं था। असल हदफ कुछ और था। मिस्र। ऐसा क्यों था? मिस्र में ऐसा क्या खास था? अगर हम शतरंज की बिसात के तौर पर देखें तो शुमाली अफ्रीका पर कब्जा एक किनारे को महफूज करने जैसा था, लेकिन मिस्र पर कब्जा बिसात के मरकज पर कब्जा करने जैसा था। अच्छा। मिस्र की अहमियत 3 गुना थी। अव्वल, उसकी जोग्राफियाई हैसियत। ये एशिया और अफ्रीका का संगम था और आलमी तिजारत का मरकज था। और दूसरा? दोम, उसकी ज़रई दौलत।
दरियाए नील की वजह से मिस्र दुनिया की रोटी की टोकरी कहलाता था। जो मिस्र को कंट्रोल करता वो एक बहुत बड़ी मईशत को कंट्रोल करता। और तीसरी वजह यकीनन सियासी होगी। बिल्कुल, उसकी अलामती और सियासी अहमियत। मिस्र इस्लामी दुनिया का एक कदीम और बावकार मरकज था। इस पर कब्जा करने का मतलब था कि फातमी खिलाफत अब अब्बासी खिलाफत की हकीकी हरीफ बन गई है। और इस अजीम मकसद को पूरा करने का काम इमाम अल-मुअल्लिदीनिल्लाह ने किया। उनके बारे में कहा जाता है कि वो एक गैर मामूली हुक्मरान और स्ट्रैटेजिस्ट थे। बिलाशुबा इमाम अल-मुइज़ ने सालों तक मिस्र की फतह की मंसूबाबंदी की। ये कोई जल्दबाजी में किया गया हमला नहीं था। उन्होंने मिस्र में अपने दाइयों का नेटवर्क इस्तेमाल करके वहां के सियासी और मुआशी हालात की पल पल की खबर रखी। तो उस वक्त मिस्र पर किसकी हुकूमत थी? उस वक्त मिस्र पर आकशीदी खानदान की हुकूमत थी, जो अंदरूनी झगड़ों, बदउनवानी और कहत साली की वजह से इंतहाई कमजोर और अवाम में गैर मकबूल हो चुकी थी। यानी इमाम अल-मुइज़ ने सही वक्त का इंतजार किया। जी, जब उन्हें यकीन हो गया कि मिस्र अंदर से बिल्कुल तैयार है, तब उन्होंने 1969 ईस्वी में अपने सबसे काबिल जनरल जोहर सख्ती को एक बड़ी फौज के साथ भेजा। जोहर सक्ली का नाम भी बहुत दिलचस्प है। हाँ, एक दिलचस्प बात यह है कि वो पैदाइशी तौर पर एक यूनानी सिसिलियन गुलाम थे। वो अपनी गैर मामूली काबिलियत और वफादारी की वजह से फातिमी फौज के सिपहसालार बने। वाह, यानी काबिलियत की बुनियाद पर? जी, ये खुद फातिमी निजाम का एक बहुत बड़ा पैगाम था कि कोई भी शख्स अदना तरीन दर्जे से बुलंद तरीन मुकाम तक पहुंच सकता था। और मिस्र की फतेह हैरान उन तौर पर बहुत आसान रही। जी, क्योंकि तैयारी मुकम्मल थी। अक्शीदी फौज ने ज्यादा मुजाहिमत नहीं की और जोहर की फौज का इस्तकबाल तकरीबन फातिहीन के तौर पर किया गया। कम से कम खून खराबे के साथ मिस्र फातिमी सल्तनत का हिस्सा बन गया। फतह के फौरन बाद जौहर ने एक नए शहर की बुनियाद रखी, अल काहिरा, यानी फतहमंद शहर, आज का काहिरा। ये सिर्फ एक नया दारुल हुकूमत तो नहीं था, है ना? आपने बिल्कुल सही समझा। कायरा सिर्फ एक इंतजामी मरकज नहीं था, ये एक बयान था, एक पावर स्टेटमेंट। इसे फातिमी खिलाफत के वकार, ताकत और नजरिए को जाहिर करने के लिए डिजाइन किया गया था। उसमें महलात थे, दफातर थे। जी, वसी और अरीज शाही महलात, हुकूमती दफातर और फौजी छावनियां थीं। लेकिन सबसे अहम चीज जो जौहर ने कायम की वो थी मस्जिद अल अजहर, यानी अल अजहर यूनिवर्सिटी की बुनियाद भी उसी वक्त रखी गई। जी हाँ, अल अजहर सिर्फ एक मस्जिद नहीं थी, इसे फातिमी दावत और इस्माइली तालीमात का आलमी मरकज बनना था। ये गोया एक ऐलान था कि अब इस्लामी दुनिया का सिर्फ सियासी मरकज ही नहीं बल्कि फिक्री और इल्मी मरकज भी बगदाद से काहिरा मुंतकिल हो रहा है। ये अब्बासियों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा। बिल्कुल। और फिर 973 ईस्वी में वो तारीखी लम्हा आया जब इमाम अल-मुइज़ खुद मगरिब से मिस्र तशरीफ लाए। उनके काहिरा में दाखिले ने फातिमी तारीख का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। वो एक अहद साज लम्हा था। दारुल हुकूमत का मैदिया से काहिरा मुंतकिल होना सिर्फ एक शहर से दूसरे शहर जाना नहीं था, ये फातिमी खिलाफत का पेरिफेरी से निकलकर इस्लामी दुनिया के कल्ब में आने का ऐलान था। तो वो अब एक इलाकाई ताकत नहीं रहे। नहीं, अब वो बहरिया रोम और मशरिक वस्ता की सबसे बड़ी सुपर पावर बन चुके थे, जिसका मरकज काहिरा था। यहाँ से वो पूरी इस्लामी दुनिया की सियासत, सकाफत और माईशत पर असर अंदाज होने के लिए तैयार थे। तो ये था यमन के पहाड़ों में एक खुफिया दावत से लेकर काहिरा के अजीमुशान महलात तक का सफर, दावत से दौलत तक की कहानी का पहला हिस्सा। एक सदी से भी कम अरसे में एक नजरिए का एक अजीम सल्तनत में तब्दील हो जाना। जी, हमने देखा कि किस तरह एक मिशन एक सल्तनत में तब्दील हुआ, लेकिन एक ऐसे नजरिए पर कायम सल्तनत खुद को कैसे बरकरार रखती है, और क्या होता है जब ताकत का मरकज एक निस्बतन नए इलाके शुमाली अफ्रीका से पुरानी दुनिया के दिल यानी मिस्र में मुंतकिल होता है। ये तब्दीली अपने साथ नए चैलेंजेस लाती होगी। बिल्कुल, एक बड़ी और मुतनव्वा आबादी पर हुकूमत करना, अब्बासियों और बजंतीनों जैसे पुराने दुश्मनों से निपटना और अपनी नजरियाती शनाख्त को बरकरार रखना, ये एक बिल्कुल नए बाप के लिए स्टेज तैयार करता है। इस नए बाप पर यानी काहिरा में फातिमी खिलाफत के उरूज, उसकी शानो शौकत और उसे दरपेश चैलेंजेस पर हम अगले हिस्से में बात करेंगे। अगर आपको तारीख की इन गहराइयों में ये सफ़र पसंद आया तो इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें। अगले हिस्से में हम इस कहानी को मजीद आगे ले जाएंगे। हमारे साथ रहने का शुक्रिया।